गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पुनः मैं आप सबके बीच में आज एक नया टॉपिक आपके लिए आया हूँ। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है। टॉपिक जो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, and these chapters there are always the posing the questions in the every examinations, and the name of the topics demand and types of demand and demand functions. So friends, the first of all ये आप जाने कि मांग है क्या, what is demand and types of demand and demand functions. So meaning of demand. Demand means effective desire या और wants कर सकते हैं for some things, but in economics we have know that demand refer to effective demands, that is the amount of buyers to effective demands a given the price of a certain times and a certain period of times. So friends, the demand for a product refers to the amount of it which it will be brought the per unit of the commodity and the time of the particular price. So friends, demand is generally classified on the basis of various factors such as in nature of a product, usage of a product, number of a products or number of a consumers or customers of a product and supplier of products. That is the demand for particular product could be different in the different situation. ये कहेंगे कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, प्रभावपूर्ण इच्छा या समय और सिचुएशन के अनुसार द चेंजिंग बदलता रहता है। अब द टाइप्स ऑफ डिमांड, सिचुएशन एंड डिफरेंट सिचुएशन कंडीशन के आधार पर द टाइप्स ऑफ डिमांड देयर आर। ऐसे तो तीन प्रकार के डिमांड होता है: प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग। बट इन दिस चैप्टर डिमांड द टाइप्स ऑफ कंडीशन के आधार पर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड। बहुत प्रकार के मांग हैं और उस मांग को हम अलग अलग रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, ऑटोनॉमस एंड डेराइव्ड डिमांड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड, नेगेटिव डिमांड जिसको हम नकारात्मक डिमांड मांग कहते हैं, नो डिमांड, देयर इज नो डिमांड जहाँ पर कोई मांग नहीं होता है, लेटरल डिमांड, डिक्लाइन डिमांड, नेगेटिव डिमांड गिरता हुआ डिमांड, इरेगुलर डिमांड कभी कभी मांग होती है, फुल डिमांड पूर्णतः मांग होती है, ओवर फुल डिमांड पूर्णता के आधार पर मांग, एंड होलसेल सम डिमांड। इतने प्रकार की मांग है। सो आई एम द टाइप वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन द डिमांड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ डिमांड इन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। प्लीज सो बी सीरियसली, ओके? एनी प्रॉब्लम्स? नो। सो बी सीरियसली listen and listen my lecture. First, the individual and market demand. Friends, it refers to the classification of the demand of a period
or product based on the number of customers in the market. इंडिविजुअल डिमांड, जिसको हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं, ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो उपभोक्ता के आधार पर डिपेंड करता है इन द मार्केट, बाजार में. इंडिविजुअल डिमांड कैन बी डिफाइंड एज ए क्वालिटी डिमांड, गुणवत्ता की मांग, बाय एन इंडिविजुअल फॉर ए प्रोडक्ट एट द पार्टिकुलर प्राइस एंड विच the specific period of time. The individual demand of a product influenced by the price of a product, income of a customers, and their taste and preference of the commodity. So friends, on the other hand, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मांग अर्थात the totally quality demanded for the product by at individuals at the given price and certain period of time regard a market demand. Now second organization at industrial demand, the demand for the product of an organization and the given per unit of time is known as industrial demand या industry demand. वो दो autonomous or derived demand, स्वायत्त और commodity demand. The demand for a period that not associated with the demand of other product is known as derived demand. It refers to the demand for a product that is the arises due to the demand for other products. And the next, short term and long term, अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग, तो कम समय के लिए मांगी जाती है, लंबे समय तक मांग की जाती है. शॉर्ट पीरियड डिमांड रिफर टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स that are used for the short duration of time for current period. And the long term demand refer to the demand for period over the long period of time. लंबे समय के लिए मांग की जाता है, उसे दीर्घकालीन मांग कहते हैं. जो अल्पकाल के लिए किया जाता है वो अल्पकालीन मांग कहा जाता है. नेगेटिव डिमांड, नकारात्मक डिमांड. द प्रोडक्ट is disliked. In generally, the product might to be beneficial or beneficial, but the customer does not want it. लेकिन कस्टमर उसको मांग नहीं करते हैं. Now no demand, कोई मांग नहीं. The target customer may be aware and uninterested about the product, so that's the type of demand is no demand. उसको हम बोलेंगे नकारात्मक, नगण्य मांग, जिसे कोई मांग नहीं है, सब कुछ सफिशिएंट है लेकिन उसकी मांग नहीं हो रही है. नेक्स्ट, लेटेंट डिमांड, कस्टमर में शेयर strong need that cannot be satisfied by any existing product. Next, decline demand, घटता हुआ मांग, when the demand of a product and service becomes lower. Next, irregular demand, demand varies on its seasonal, मतलब जिसे कहते हैं सीजनल, ऋतु, डेली and hourly basis. Over full demand, third, full demand, when the organization is replaced with volume of business. And the next, over full demand leaves is higher that the organization can we want the handles. Now, function of demand. Function of demand.
friends, demand functions means the relations, functional relation with demand and price, and goods and price the proportional relations, the functional relation, दोनों का मांग फलन, मांग और कीमत का फलनात्मक संबंध is the functional relation between the price and commodity demand. Now, demand functions show the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factor influencing it. आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं कि मांग फलन डिमांड फंक्शंस मीन्स Px मतलब प्राइस ऑफ x goods and quantity of dx, demand of x goods. dt is the demand curve. This here the dx is the function of Px. Means कीमत और मांग में फलनात्मक संबंध होता है, फंक्शनल रिलेशन होता है. So friends, if the dx is the depend upon Px, because dx is the also depend upon Px, डिमांड प्राइस पर निर्भर करता है. डिमांड इज द डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, एंड सपोज दैट हायर द प्राइस एंड लो डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. दिस इज अ प्रोपोर्शनल या तो फंक्शनल रिलेशन या फिर द फलन फंक्शंस हैं, तो दोनों का फलनात्मक संबंध होता है. नाउ द टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शंस. डिमांड फंक्शन इज द टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस and market demand functions. Individual demand functions means it can be either with respect to one customer, individual demand function to all consumers in the market, and that is known as market demand. So friends, the first of all I have explained the individual demand, व्यक्तिगत मांग functions. Individual demand functions, it refer to the functional relations between individual demand and the factor affecting the individual demands. It is expressed as, आप इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. Suppose that dx is the function of Px, Pr, Y, T and F. Here, जहाँ dx is the demand for commodity x, यानी x वस्तु की मांग है. Px the price of the commodity given the commodity x, x वस्तु की कीमत है. T the taste and preference, टेस्ट और वरीयता को शो करता है. या फिर द फ्यूचर प्राइस चेंजिंग इन द एक्सपेक्टेड गुड्स, भविष्य में वांछित वस्तु की कीमत. एंड एफ इज द फंक्शन, एफ द फंक्शन मतलब फलन है. इनका फलनात्मक संबंध होगा Px, प्राइस ऑफ x. जैसी Px होगी वैसी dx होगी. हाई द प्राइस एंड लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हाई डिमांड. Pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, किसी वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा. Y अर्निंग, Y इक्वल टू अर्निंग, सॉरी Y इक्वल टू इनकम, इनकम ऑफ कस्टमर. हायर द इनकम ऑफ कस्टमर, हायर डिमांड ऑफ कस्टमर. जैसी इनकम होती है उसकी मांग होती है. प्रोपोर्शनल. टी इज द टेस्ट, जैसा टेस्ट में परिवर्तन होगा मांग कम हो जाएगा. टेस्ट अगर अच्छी होगी तो मांग बढ़ जाएगी, या जब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कीमत में बढ़ने की संभावना होगी तो मांग पर प्रभाव पड़ता है. नाउ द फर्स्ट एंड सेकंड, द मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड इट मीन्स मार्केट डिमांड. सो आप इसको आप देख लीजिए, इसको भी आप इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं. इसे व्यक्तिगत फलन को भी दिखाया गया है. आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं व्यक्तिगत निजी फलन को. सपोज दैट आप इसे एक्सप्लेन करें व्यक्तिगत मांग फलन को एक चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग OX एंड OYX
ओ एक्स ऊपर डी एक्स, या क्वांटिटी कर सकते हैं आप, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स एंड टेक द प्राइस ऑफ गुड्स। ये कीमत दिखाया गया है, इस पर मांग दिखाई गई है। ये बजट लाइन है डी एक्स इक्वल टू 100 माइनस 5 पी एक्स, यानी कि एक कीमत इसमें अगर डिवाइड करेंगे, ये 20 है, 5, 5, 10, 15, 20, ये है 0, 25, 50, 75, 100, 100, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। ये आपको इंडिविजुअल दिखाया गया है ना। वो मार्केट डिमांड में क्या होगा, मार्केट डिमांड में जहाँ बहुत सारे क्रेता आकर के और बाजार में अपनी मांग करते हैं, तो बाजार मांग फलन होगा कि एक नहीं अनेक, देयर आर many more, a mass level of customers are demanded in the market, are gathering in the market, and that's relations between price and demand, that's demand function in the market demand. Now it is clear by this statement and definitions of the demand function, the market demand function. It refers to the function relationship between market demand and the factors affecting market demand. So in addition, it is also affected by the size and composition of population, seasons and weather and distribution of income. Market demand function can be expressed as, इस प्रकार से हम बाजार मांग फलन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाजार मांग फलन को सपोज करने के लिए, देखने के लिए आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए आप, ये बाजार मांग फंक्शन है, बाजार मांग फलन ये दिखाया है डी एक्स इजकल टू, डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी, एफ, पी, एस एंड डी। सो फ्रेंड्स, डी एक्स कह रहा है, डी एक्स इज द मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स का मार्केट देखिए ना, डी एक्स है ना, एक्स का मांग है, या फिर द फंक्शन फलन है। पी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी गिवन कमोडिटी एक्स, एक्स वस्तु की कीमत को शो करता है। पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मीन्स फ्रेंड्स ये दिखा रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या प्राइस ऑफ संबंधित वस्तु की कीमत को शो करता है। वाई इनकम ऑफ कस्टमर, वाई इज द इनकम ऑफ कस्टमर, यह उपभोक्ता की कीमत को शो करता है। टी द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यह उपभोक्ता के टेस्ट और वरीयता को शो करता है कि मतलब जैसा उपभोक्ता की टेस्ट होगा और इच्छा होगी या उस तरह की वस्तु का वरीयता देगा। या फ्यूचर प्राइस इन द एक्सपेक्टेड गुड, भविष्य में वस्तु की कीमत क्या होगी उसको यस के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। यस द सीजन एंड वेदर, सीजन के अनुसार कंडीशन एंड सीजनल डिमांडेड ऑफ द गुड्स कमोडिटी, क्योंकि बिकॉज नो आई हैव नो दैट द कस्टमर इज द रेशनल कस्टमर्स, क्योंकि उपभोक्ता विवेकशील होता है, वो सीजन के अनुसार वो समझ लेता है किस सीजन में किस वस्तु की हमें अधिक मांग करना है, किस सीजन में किस वस्तु की मांग कम करनी है, उस पर वो ध्यान देता है। डी द डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम, सोसाइटी में समाज में जितनी आय का जैसा वितरण होगा उस तरह की वस्तु की मांग होती है। और एफ की द फंक्शन, एफ क्या है, एफ को हम फलन से डिनोट करते हैं, इसलिए डी एक्स डिपेंड अपॉन दैट्स एलिमेंट्स, यानी इन दोनों का फलनात्मक संबंध होता है। डी एक्स फल, डी एक्स का मांग का फलनात्मक गुणात्मक संबंध होता है, किसे फलनात्मक फंक्शन रिलेशन बिटवीन द पी एक्स, पी आर, वाई, टी, एफ, पी, एस एंड डी का फलनात्मक संबंध होगा। जैसा रिलेटेड गुड्स का संबंध मांग होगी, कीमत होगी, वैसा जैसा कीमत होगा वस्तु का, एक्स का होता मांग होगा, संबंधित वस्तु कीमत जैसा होगा वैसा मांग होगा। जैसा उपभोक्ता की आय होगी उस तरह की वस्तु की मांग करता है। उपभोक्ता की टेस्ट कैसा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग वस्तु की मांग करता है। फ्यूचर में
भविष्य की कीमत वस्तु की कीमत बदलने वाली है या कुछ भी परिवर्तन होने की आशा की जाती है, तब वैसी स्थिति में मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पी इज द प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेड गुड्स हो गया। यस यस इजकल टू सीजन एंड वेदर, सीजन में भी कभी कभी मांग बहुत घटती है या कभी कभी बढ़ जाती है। यस हो गया सीजन हो गया। डी क्या होगा, डी द डिजिटल इनकम, जैसा समाज में इनकम होता है उस तरह के वस्तु की मांग होती है। समाज में आय का वितरण कैसा है, अगर आय का समान वितरण है तो अच्छी वस्तु की मांग होती है। यदि आय का वितरण कम है, वैसी स्थिति में अमीरी गरीब की खाई ज़्यादा होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। और लास्ट फंक्शन, फलनात्मक संबंध। नाउ अब हम इसे मार्केट डिमांड फंक्शन को इट इज एक्सप्रेस बाय डायग्राम, अब इसे चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है दो अक्ष लिया, ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष लिया, और ओ एक्स अक्ष पर हमने इसको डी एक्स यानी कि क्वांटिटी को मांग, और पी एक्स ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। डी एक्स इक्वल टू अल्फा पी एक्स, अल्फा मतलब अल्पकालीन एक डी एक्स में परिवर्तन होगा, जैसा पी एक्स में परिवर्तन होगा, यानी जैसा पी एक्स होगा वैसा डी होगा। इस तरह के फलनात्मक संबंध होता है। नाउ थैंक्स फ्रेंड्स, यदि आप मेरे लेक्चर से संबंधित हैं तो आप प्लीज़ इसको समझें, क्योंकि मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सिविक फाइनेंस एडवाइज़र, मैं हमेशा आप सबको लगातार लेक्चर दे रहा हूँ, नए वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज इस समय पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके बाद जीआईसी प्रवक्ता तमाम वैकेंसी निकली हुई है। वन डे में लगातार लड़के तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर डिमांड एंड डिमांड फंक्शंस, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन 5 नंबर से 7 नंबर के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सो फ्रेंड, इस चैप्टर को टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो लगातार मेरा टॉपिक चल रहा है और इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें हमेशा, क्योंकि नया जब वीडियो बनेगा तो जैसे ही नया वीडियो लेक्चर बनेगा तो सबसे पहले अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास जाएगा लगातार। और मेरा ये चैनल है फ्री स्टडी टाइम, फ्री है, विदाउट एनी कास्ट मैं फ्री आप सबको लेक्चर दे रहा हूँ, ताकि मेरा एक स्वार्थ है क्या है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इनिशिएटिव है, आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।